Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. So after watching the videos, if you think that the videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel, like the videos and share my videos. So let's start today's topic from basic electrical engineering. The topic is the electrical circuit and its types. Okay, so under this topic our first point will be the concept of circuit. So what is circuit? The definition is a circuit is a closed conducting path through which an electric current flows. Okay, that means सर्किट कौन सा होगा? ये क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सर्किट कंसीडर किया है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस R1 एंड रेजिस्टेंस R2. Using these three components, we have constructed a closed path, and these components R1 and R2, these are called circuit parameters. Okay, circuit parameters. सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स क्या करेगा? इसका इक्विवेलेंट करंट आई सर्किट में फ्लो करेगा. ठीक है ना, इसका इक्विवेलेंट करंट आई सर्किट में फ्लो होगा. सो फ्लो होने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसका दो टर्मिनल्स है. एक हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी टर्मिनल्स, अदर वन इज नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल्स. So the current will starts flowing from the positive polarity terminals, and after that it will flow through the circuit parameter R1, then circuit parameter R2, and after that it will complete its path to the negative polarity terminal of the voltage source. That means यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो करंट है, ये करंट एक क्लोज्ड पाथ में फ्लो करेगा. ठीक है ना? So that's why this closed conducting path is called circuit. The next topic will be linear circuit. Okay, so linear circuit is a type of circuit. The definition is a linear circuit is one whose parameters are constant with time. Okay, and they do not change with voltage or current, and the circuit obeys the Ohm's law. ओके, तो लीनियर सर्किट कौन सा होगा? लीनियर सर्किट वो है जिसका पैरामीटर्स जो होता है, पैरामीटर्स मीन्स प्रीवियसली वी हैव सीन दैट द पैरामीटर्स आर द सर्किट रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स दैट इज कनेक्टेड विद द सर्किट, राइट. सो लीनियर सर्किट हम उसको बोलेंगे जिसका पैरामीटर्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, टाइम चेंजिंग के साथ पैरामीटर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा, एंड दे डू नॉट चेंज विद वोल्टेज और करंट. वो जो सर्किट पैरामीटर्स होगा वो वोल्टेज और करंट के साथ चेंज नहीं होगा. ठीक है ना, वोल्टेज और करंट के साथ चेंज नहीं होगा. सो यहाँ पे जो सर्किट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, इसमें देखिए टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड R1 एंड R2. ओके, एंड द वैल्यूज ऑफ दिस रेजिस्टर्स आर कांस्टेंट. The values of the resistor will never change with respect to time or with respect to voltage or with respect to current. ठीक है ना, यहाँ पे जो सर्किट का पैरामीटर्स होगा ये वोल्टेज या फिर करंट या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा. इसके लिए वो सर्किट को हम बोलेंगे लीनियर सर्किट. द नेक्स्ट टाइप विल बी नॉन लीनियर सर्किट. ओके, so the definition is it is the circuit whose parameters changes with voltage or current. Okay, so non-linear circuit will be opposite of linear circuit. In linear circuit all the circuit parameters will be constant with respect to time, with respect to voltage or with respect to current. But in non-linear circuit the parameters will be changeable with respect to voltage or with respect to current. Okay, so let's consider a simple example so that we can understand the concept more easily. So यहाँ पे हम लोग क्या हम लोग यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर को कंसिडर किया, राइट. ट्रांसफार्मर कंसिडर किया. ट्रांसफार्मर का डिटेल कॉन्सेप्ट हम जो मशीन्स का पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे शॉर्टली हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. इन ट्रांसफार्मर देयर आर बेसिकली टू वाइंडिंग्स.
Okay, the first winding is called primary winding considered by P, and the second winding is called secondary winding. Both the windings are attached with a common core. Okay, when we apply the input voltage V1 across the primary winding, then we will get the output voltage V2 across the secondary winding. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, that means Faraday's law, where a changing current in primary coil induces a voltage in another coil, that means secondary coil. So यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी सर्किट में अगर हम करंट को चेंज करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज चेंज होगा, राइट. So in that circuit we have seen that if we change the value of current across the primary circuit, then we will get a changing voltage across the secondary circuit. That means if we change one parameter, then obviously the other parameter will get changed. That's why this circuit is called nonlinear circuit. So till now we have studied about the basic concept of circuit, linear circuit, non-linear circuit. Okay, now we will study about the circuit parameters. Okay, the definition is the various elements of an electric circuit are called parameters. Okay, for example, if we consider a circuit with two resistors and a capacitor and a inductor, right, and a inductor, then these components like resistor, capacitor and inductor, these components are called circuit parameters. Okay, now the circuit parameters can be lumped or distributed. सर्किट पैरामीटर्स को हम सर्किट में लम्प्ड कंडीशन में कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड कंडीशन में कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज लम्प्ड कंडीशन एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंडीशन? Distributed condition is that if we connect the circuit parameters for a long line, then it is called distributed system or distributed connection. Generally we can see the distributed connection in long transmission lines. Okay, long transmission lines, that means the transmission line between generating station and load center. And what is lumped? If the circuit components are connected for a less distance or less length, then it is called lumped connection. Generally in small electrical circuits we can see the lumped connection. Okay, the next type of circuit is bilateral circuit. So first of all, let's see the definition. The definition is a circuit whose properties or characteristics are same in either direction is called bilateral circuit. Okay, so let's understand the concept by using a small or easy example. Okay, the example is like transmission line. ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, एक सेंडिंग एंड होता है जिसको हम एंड ए से कंसीडर किया है इस डायग्राम में, और एक क्या होगा, रिसीविंग एंड होगा, राइट. रिसीविंग एंड में हम बी से कंसीडर करते हैं यहाँ पे, राइट. सेंडिंग एंड पे क्या होगा, जनरेटिंग स्टेशन. सेंडिंग एंड में होगा जनरेटिंग स्टेशन, राइट. और रिसीविंग एंड में क्या होगा, फॉर एग्जांपल सबस्टेशन. सो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर सेंडिंग एंड से हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज को फेड करते हैं सिस्टम में, इनपुट करते हैं सिस्टम में, और रिसीविंग एंड से आउटपुट करते हैं, राइट. सो दैट मीन वोल्टेज विल फ्लो फ्रॉम डायरेक्शन ए टू डायरेक्शन बी, राइट. नाउ इफ वी रिवर्स द कंडीशन, दैट मीन्स इफ वी कंसिडर द टर्मिनल बी एज सेंडिंग एंड स्टेशन and terminal A as receiving end station. In that case, the voltage will flow from point B to point A. That means हम terminal A को
इनपुट टर्मिनल से कंसीडर कर सकते हैं या फिर रिसीविंग एंड को इनपुट टर्मिनल के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो सर्किट पैरामीटर्स है सर्किट पैरामीटर्स मीन्स लाइन में क्या होगा, रेजिस्टेंसेस होगा ना। सर्किट पैरामीटर्स क्या होगा, सर्किट पैरामीटर्स कांस्टेंट होगा, सर्किट पैरामीटर्स चेंजेस नहीं होगा। ओके, इन दैट केस वी कैन कॉल it as a bilateral circuit. The next is unilateral circuit. So unilateral circuit will be opposite of bilateral circuit. So the definition of unilateral circuit is a circuit whose properties or characteristics changes with the direction of operations. Okay, that means इनपुट टर्मिनल चेंज होने के साथ क्या होगा, सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक डायोड रेक्टिफायर का, राइट। एक डायोड का एग्जांपल हम यहाँ पे लिया है। सो दिस इज द बेसिक सिंबल ऑफ ए डायोड। ओके, एंड द डायोड contains two terminals, terminal A and terminal B. Okay, so if we fed a voltage from terminal A, that means अगर हम टर्मिनल ए को इनपुट टर्मिनल से कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, वोल्टेज ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कंडक्ट होगा, राइट। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, दैट मीन्स टर्मिनल बी से अगर हम इनपुट करते हैं तो ये क्या करेगा, डायोड वोल्टेज का जो फ्लो होगा इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसको ब्लॉक कर देगा। दैट मीन्स अगर हम कंडक्शन, वोल्टेज का कंडक्शन अगर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक करते हैं तो उसमें कंडक्शन होगा, कंडक्ट होगा, राइट। अगर उसको उल्टा कर देते हैं, दैट मीन्स बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक हम वोल्टेज को भेजते हैं, बी पॉइंट को इनपुट टर्मिनल से हम रिप्लेस करते हैं, उस वक्त क्या होगा, ए डायोड वोल्टेज के फ्लो को ब्लॉक कर देगा, राइट। So that means if we change the direction of input voltage, input flow, then the system will change its properties or its characteristics. That's why it is called unilateral circuit. Unilateral circuit में क्या होगा, एक ही direction से हम voltage को supply कर सकते हैं, ठीक है। और bilateral circuit में दोनों direction से हम voltage को supply कर सकते हैं। Next topic में हम आते हैं electrical network. Now what is electrical network? The definition is a combination of various electrical elements connected in any manner is called electric network. इसका मतलब ये होता है, अगर हम वेरियस सर्किट एलिमेंट्स को और सर्किट कंपोनेंट्स कौन सा होता है, प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड दैट द सर्किट पैरामीटर्स और सर्किट कंपोनेंट्स आर लाइक रेजिस्टर, लाइक कैपेसिटर, लाइक इंडक्टर, राइट। अगर हम ये रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को एक साथ कनेक्ट करते हैं, एनी मैनर मीन्स आइदर सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, then it is called electric network. Now how can we understand a connection is a series or a parallel? Okay, इस कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे हम समझे कि कोई कंपोनेंट सर्किट में सीरीज में कनेक्ट है या फिर कोई कंपोनेंट सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट है, इसको हम अगले वीडियो में डिटेल से समझेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिक नेटवर्क मीन्स अगर हम इस सर्किट कंपोनेंट्स में भी रेजिस्टर, में भी इंडक्टर, में भी कैपेसिटर, ये सब कंपोनेंट्स को अगर हम आइदर सीरीज और पैरेलल में एक ही साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज पैसिव नेटवर्क। ओके, पैसिव नेटवर्क। सो इलेक्ट्रिक नेटवर्क आर टू टाइप्स, one is passive network, other one is active network. Okay, now what is passive network? A network which contains no source of EMF. Okay, अगर कोई नेटवर्क में क्या होगा, हमारा सोर्स का जो वोल्टेज सोर्स होता है, EMF सोर्स होता है, अगर वो सोर्स ना हो तो हम उसको बोलेंगे पैसिव नेटवर्क, राइट।
So considering the diagram, you can see that here we have connected 4 circuit parameters like resistor R1, resistor R2, R3 and R4. But in that circuit, no EMF sources are connected. Okay, यहाँ पे कोई EMF सोर्स नहीं है, सिर्फ क्या है, सर्किट कंपोनेंट्स, सर्किट पैरामीटर्स कनेक्टेड है यहाँ पे, राइट। सो इसको हम बोलेंगे पैसिव नेटवर्क। पैसिव मीन्स देयर विल बी नो सोर्स ऑफ EMF। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी एक्टिव नेटवर्क। सो एक्टिव नेटवर्क क्या होगा, पैसिव नेटवर्क का ऑपोजिट होगा, राइट। सो एक्टिव नेटवर्क में क्या होगा, ए नेटवर्क which contains one or more than one EMF sources, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जब पहले की तरह हम यहाँ पे सर्किट कंपोनेंट्स को कंसीडर किया है। वन इज रेजिस्टर R1, रेजिस्टर R2 एंड रेजिस्टर R3। ओके, बट उसके साथ क्या है, एक वोल्टेज सोर्स, दैट मीन्स EMF सोर्स कनेक्टेड है विथ टू पोलरिटीज, वन इज पॉजिटिव पोलरिटी, अदर वन इज नेगेटिव पोलरिटी। ओके, सो सर्किट में एक ही वोल्टेज सोर्स हो सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सर्किट में 2 वोल्टेज सोर्सेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस वन वोल्टेज सोर्स विल बी V1 विथ पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी, अदर वोल्टेज सोर्स विल बी V2 विथ पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी। सर्किट कंपोनेंट्स आर R1, R2, R3। सो एज पर डेफिनेशन, ए नेटवर्क which contains one or more than one EMF sources is called active network। सो कंक्लूजन क्या है, पैसिव नेटवर्क में कोई भी EMF सोर्स नहीं होगा, राइट, और एक्टिव नेटवर्क में EMF सोर्स होगा, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी नोड। नाउ व्हाट इज नोड? इट इज ए पॉइंट इन ए सर्किट where 2 or more circuit elements are connected together। सर्किट एलिमेंट्स क्या है? Previously we have discussed that circuit elements are like resistor, like capacitor, like inductor। Okay, now node क्या होगा? node होगा एक point, node होगा एक point in a circuit where 2 or more circuit elements are connected। You can see in the diagram here I have marked a point as node because with that point the resistor element, the circuit element R1, circuit element R2, circuit element R3 are connected together, right? So basically node is a junction point where 2 or more than 2 elements are joined together, right? जिस point में 2 elements और उससे ज़्यादा elements क्या होगा, एक साथ connect होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, node। Next topic will be branch। Okay, now what is branch? It is that part of network which lies between two nodes। मतलब दो नोड के बीच में अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच। यहाँ पे देखिए, हम नोड B एंड नोड D, इस सर्किट को हम पॉइंट से डिनोट किया है, ABCD, उसमें B पॉइंट जो है उसमें एक नोड है, बिकॉज रजिस्टर R1, R3 एंड R2 नोड B के साथ कनेक्ट है, राइट। एंड D में क्या है, R3 कंपोनेंट कनेक्ट है, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, एंड R2 अनदर रजिस्टर कनेक्ट है, राइट। सो इन दोनों नोड के बीच में जो भी कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांचेस। यहाँ पे R2 वाला एक ब्रांच होगा, R3 वाला एक ब्रांच होगा, R1 वाला एक ब्रांच होगा, उसके साथ वोल्टेज का जो है ये ब्रांचेस होगा, बिकॉज ऑल दिस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन बिटवीन nodes। Next topic will be loop। Now what is loop? It is a closed path in a circuit in which no elements or node is encountered more than once। Okay, more than once। इसके मतलब क्या है, नोड क्या होगा, नोड होगा एक क्लोज्ड पाथ, राइट। नोड होगा एक क्लोज्ड पाथ सर्किट में, जिसमें क्या होगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा और
node is encountered more than once, राइट. सो सर्किट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, हमारा लूप कितना है, लूप क्या होगा, क्लोज्ड पाथ होगा, राइट. सो यहाँ पे लूप 1 L1 कौन सा होगा, A B G H A, राइट. दिस वन विल बी आवर फर्स्ट लूप. ओके, लूप इज ए क्लोज्ड पाथ, राइट. इसके अंदर में कोई भी सर्किट कंपोनेंट, कोई भी नोड, ओके. सो नेक्स्ट क्या होगा, देखो L2, लूप टू कौन सा होगा, लूप टू होगा BCFGB. ओके, BCFGB. सो दिस वन विल बी लूप नंबर 2. ओके, and third one will be CDEFC. Okay, that means this one will be third loop. Okay, and loop 4 कौन सा होगा, ये बाहर वाला जो एरिया है उसको हम एक लूप कंसिडर कर सकते हैं, ये भी क्लोज्ड पाथ है, नाम होगा ABCDEFGHA, मतलब ये बाहर वाला जो होगा ये भी एक लूप है, राइट. उसके बाद लूप 5 और एक होगा, ये होगा ACFHA, मतलब ये पूरा वाला जो होगा ये होगा एक लूप. और लास्ट वाला कौन सा होगा, BCDEFGB. ओके, ये बी से लेके BCDEFG देन B. सो दिस वन विल बी अनदर लूप. सो यहाँ पे टोटल 6 नंबर्स ऑफ लूप्स होगा. एंड लास्ट टॉपिक क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा मैश. सो डेफिनेशन इज, इट इज ए लूप दैट कंटेन्स नो अदर लूप विद इन इट. इसमें क्या होगा, लूप में क्या होता है, देखो एक ही लूप के अंदर दूसरा लूप हो सकता है, राइट. ये बड़ा वाला जो लूप है उसके अंदर छोटा छोटा और भी 3 लूप कनेक्टेड है, मगर मैश के अंदर क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, उसके अंदर कोई भी लूप नहीं होगा. सो यहाँ पे जो डायग्राम है, पहले वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे मैश 1 कौन सा होगा, ABGHA, राइट. सो ABGHA, first one, this one is independent node. Okay, so mesh 1 कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए ABGHA. okay, that means this one. okay, this one will be our mesh number 1 in that circuit. okay, and mesh number 2 will be BCFGB. okay, so that means this one will be mesh number 2, and third mesh will be CDEFC. that means this one will be mesh number 3. so basic difference क्या होगा एक लूप और mesh में, basic difference is एक लूप के अंदर दूसरा हो सकता है. ओके, एंड मैश में क्या होगा, एक मैश के अंदर, दैट मीन्स एक के अंदर दूसरा नहीं होगा. ओके, वो इंडिपेंडेंट होगा, मैश जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा. ओके, एंड सिमिलैरिटीज विल बी loop and mesh both are closed conducting path. okay, that will be similarities. so that's all for today's video. If you have any queries, then you can ask in comment section. Thank you for watching.